guys, and welcome back to my channel Basics The Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic valuation terms. We will do this session in two parts. In this part I am going to discuss the terms book value, market value and fair value. So let's start with the term book value. What is book value? For a company or an individual, book value is something which is recorded in the books of a company. That is called book value. अगर हम हिंदी में बात करें तो book value वो होती है जो किसी भी particular asset या liabilities की value होती है और वो कंपनी के बुक्स में रिकॉर्डेड होती है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बुक्स? हम बुक्स क्या हुई? बुक्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए, कंपनी की जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, आपके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो हमारे बुक्स के अंतर्गत आते हैं. तो उन बुक्स में जो भी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी की रिकॉर्डेड होती है वो उस पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी की बुक वैल्यू कहलाती है. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जस्ट से फॉर अ कंपनी फर्नीचर, in the balance sheet the value of company's furniture is rupees 10,000 INR. INR is nothing but Indian rupees. We all must be knowing that. So the book value of that furniture for a company is 10,000 INR. Like if we say machinery, the value of the machinery in the books of the company is 50,000 INR. So we mean here that the book value of the machinery is 50,000 INR. So book value is nothing but the recorded value of a particular asset or liabilities in the books of a company or an individual. You can say the shopkeeper or any small seller. Whatever the value of their products is recorded in their books. Books is nothing but the financial statements of that particular small business or a company. That is called the book value of an asset, liabilities of a particular product. We can also understand by the previous formula which I have told you in my last video that book value, we have said that shareholders equity is total assets minus total liabilities, which we are getting from the balance sheet of a company, but that is called actually the book value of the company. How? Total assets minus total liabilities, that is shareholders equity. And that is actually the book value of the company, because हम किसी भी कंपनी को जब परचेज करने का सोचते हैं या हम उसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हम एक्चुअल कंपनी की बुक वैल्यू ही निकालते हैं. तो हमें बुक वैल्यू कैसे पता चलेगी? जब हम कंपनीज के टोटल एसेट्स में से उसकी सारी लाइबिलिटीज डिडक्ट कर देंगे. हम कंपनी एक्चुअल कितनी वैल्यू रखती है, दैट इज बुक वैल्यू इन द स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी एक्चुअल कितनी वैल्यू रखती है वो हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा. और किसी भी कंपनी के एसेट के वैल्यूएशन में से हमें लाइबिलिटीज़ डिडक्ट करनी ही पड़ेंगी, तभी हमें एक्चुअली पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है. अगर हम कंपनी की लाइबिलिटीज़ एसेट्स में से डिडक्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू नहीं जान सकते और हमें कभी भी ये पता नहीं चल, क्योंकि कंपनी के जो पेबल्स हैं, जिन जैसे क्रेडिटर्स हो गए, अकाउंट्स पेबल हो गए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे तो हमें पे करने ही हैं. तो वेदर इट इज़ अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बट हमें उसे मान के चलना है कि वी आर पेबल फॉर दैट. तो किसी भी कंपनी की जो भी एसेट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू है और उस वैल्यू में से कंपनी इज एक्चुअली एलिजिबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज और नॉट. इफ यस, then we will deduct that particular amount of liabilities from the assets of the company and then we will get the actual book value. Book value is in the books of the company. We will get that book value of the company from that statement.
Now guys, let's discuss the term market value of an asset. So what is the market value of an asset? It can be of anything, market value, or we can say open market value. It can be of anything. It can be of asset for a company. It can be of a product for a manufacturer. It can be of any service for a service delivery company. So market value is what price we can get in the market for a particular asset. एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, हम अपने घर की ही चीज़ों के बारे में बात करें तो आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, इफ आई एम एंड द वैल्यू ऑफ दैट चेयर इज, व्हेन आई परचेज्ड दिस चेयर 5 years back, I bought it in 2500 INR. But now after 5 years I want to sell this chair. So what will be the value of this chair in the market? So मुझे पता करना पड़ेगा कि अगर मैं आज की डेट में इस चेयर को बेचना चाहूँ तो इस चेयर की वैल्यू मार्केट में क्या होगी. लेट्स से अभी 5 साल बीत चुके हैं तो हो सकता है 500 रुपीज़ ही मिले मुझे, क्योंकि ये पुरानी है, इसलिए 500 रुपीज़ इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर चेयर. सेम अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात करें, किसी भी कंपनी की कोई भी एसेट है, से मशीनरी. सो मशीनरी किसी भी कंपनी की 50,000 रुपीज़ वैल्यू है एंड द कंपनी वांट्स टू सेल दैट मशीनरी. तो कंपनी को पता करना पड़ेगा कि इस मशीनरी की मार्केट वैल्यू क्या है और हमें कितना प्राइस मिल जाएगा इस मशीनरी के लिए. तो इट कैन बी एप्रिशिएटेड वैल्यू एंड इट कैन बी डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज वेल. मतलब दोनों ही कंडीशंस हो सकती है, या तो हमें इंक्रीज अमाउंट मिलेगा या हमें डिक्रीज अमाउंट मिलेगा. हो सकता है इस मशीनरी को सेल करने अगर कंपनी मार्केट में जाती है तो वो उसके 60,000 और इवन मोर पैसे उसे मिल सकते हैं कंपनी को, या हो सकता है कंपनी को सिर्फ 45,000 रुपीज़ ही मिले. तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे, मार्केट की डिमांड्स पे, कि हमारे जो भी हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या एसेट बेचना चाहते हैं उसकी मार्केट की वैल्यू क्या है. सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट. और सर्विस के लिए भी मार्केट वैल्यू, जैसे कोई भी सर्विस, आप सैलून सर्विसेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर का, तो वो भी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि अगर ये पैकेज दे रहे हैं तो उसका मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें क्या, और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस इन दैट पर्टिकुलर set price, then that will be the market value of the that particular product. So हमें अपना मार्केट वैल्यू हम नहीं सेट कर सकते, हमें मार्केट से ही पता चलती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एसेट या सर्विस की मार्केट वैल्यू. So now let's discuss the term fair value. What is the fair value of an asset, product or service? Like whenever we manufacture a product or we decide to deliver a service or a company wants to sell something, so they need to set a particular price for that particular product or service. As we discussed in market value, मार्केट वैल्यू में क्या होता है, हमें मार्केट वैल्यू पता चलती है मार्केट से. वो मार्केट डिसाइड करता है कि वो मार्केट वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. बट अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और वी हैव डिसाइडेड टू डिलीवर अ पर्टिकुलर सर्विस, देन वो फेयर वैल्यू हम डिसाइड करते हैं. वी आर एलिजिबल टू डिसाइड दैट फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. हाउ? सो व्हाट हैपन्स, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, say a mobile, let's take an example. This is a mobile and this was manufactured in my factory. So what is going to happen, I will set a price based on assumptions
for this particular mobile. That will be whatever the price I will set for this mobile is going to be the fair value of this mobile, because I have set the fair value of this mobile. How we will set the fair value? See, fair value is completely based on the assumptions. हम assumptions, or you can say it's an approximate value of a product, that is called the fair value of a product. जैसे कि अगर मार्केट वैल्यू इस प्रोडक्ट की आज की डेट में 2000 रुपीज़ है, तो हम एक फेयर वैल्यू लगाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कि अराउंड 1800 में तो बिकी जाना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की एक फेयर वैल्यू डिसाइड करती हैं। तो फेयर वैल्यू हम डिसाइड करते हैं, और फेयर वैल्यू डिसाइड करने से पहले अगेन जैसे हमें मार्केट वैल्यू में बाहर से पता चलता है, फेयर वैल्यू डिसाइड करने से पहले अपने द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किसी भी प्रोडक्ट की हमें मार्केट की डिमांड कंसीडर करनी पड़ती है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट या सर्विस में क्या प्राइस उन्होंने सेट किया है वो देखना पड़ता है, और मार्केट कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। लाइक पीपल आर actually paying the increased amount for that product, or they are not willing to pay much for that particular product. So अपने किसी भी प्रोडक्ट की फेयर वैल्यू सेट करने से पहले हमें ये 3 कंडीशंस को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, स्पेशली आपकी मार्केट की जो डिमांड है और आपके कॉम्पिटिटर्स ने जो प्राइस सेट किया है उनके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्रोडक्ट की फेयर वैल्यू सेट कर सकते हैं। हियर लेट्स से एन एग्जांपल, जैसे किसी भी कंपनी की अगर हम एसेट का एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में किसी मशीनरी की वैल्यू थी, आई एम जस्ट राइटिंग दिस वे, 50,000, ओके। सेकेंड ईयर में मशीनरी हो गई 60,000, थर्ड ईयर में मशीनरी हो गई 30,000. So now the total fair value is 1,40,000 INR for a machinery. जो मशीनरी का फेयर वैल्यू है at the end of the 3 years is 1,40,000. But this is only fair value what we are considering for that particular machinery. So now, as we said in my last clip, that this is the fair value of the machinery which is without depreciation. You people should concentrate here that first year the machinery was 50,000 rupees, second year the machinery was 60,000, and third year the machinery was 30,000. So at the end of third year the fair value of the machinery was 1,40,000 rupees. So fair value is nothing but the value of an asset without depreciation. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ईयर 10% डेप्रिसिएशन था, सेकेंड ईयर 5% डेप्रिसिएशन था, एंड थर्ड ईयर 6% डेप्रिसिएशन था। तो 10% डेप्रिसिएशन काट के यहाँ पे 45,000 हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो जाएगी, एंड वाइसी वर्सा। वो हमारी जो एसेट होगी, मशीनरी होगी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। आई एम सॉरी, आई एम होल्डिंग द बोर्ड बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आई नीड टू चेंज द प्लेस। सो दैट विल बी द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी। बट जो मशीनरी की फेयर वैल्यू है, विच इज द एक्चुअल वैल्यू which the company has decided, that is 1,40,000 rupees. Same happens with any product or service. Like I started manufacturing pens. This is marker. We started manufacturing pens. So now how we will decide the fair value of a pen? हम सोचेंगे कि हम उस जो पेन की वैल्यू है वो एक पेन मार्केट में कितने रुपीस का बिकना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे कि
ये 10 में बिकना चाहिए, या फिर हम 2-3 पेन कलरफुल साथ में बेच रहे हैं तो हम सोचेंगे कि वो 5 पेन्स का बंच है वो 50 में बिक जाए. तो वट एवर वी डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ अ पेन, द प्रोडक्ट विच वी हैव मैन्युफैक्चर्ड इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. ऐसे ही हम किसी भी सर्विस की भी फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं. जैसे एज आई सेड सैलून सर्विस हो गई, कुछ योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, या फिर आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आपके घर पे इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, वो सर्विस हो गई. तो जो भी सर्विसेज आपको डिलीवर की जाती हैं वो उनकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस एंड अजम्पशंस, दैट इज कॉल्ड fair value of that particular product. So there are 3 methods for calculating the fair value of a particular product. The first method is comparable information calculation. So comparable information calculation is nothing but the 3 things which I have told you to consider while setting the fair value of your product. Those are market demands, competitors pricing and whether the consumers are actually paying that much amount in the market or not. So these are the market comparable information calculations, are nothing but the market conditions which we need to keep in mind while setting the fair value of our product. And the second method is cash flow calculation. Cash flow calculation. So cash flow calculation is nothing but we need to check how much cash is coming and how much cash is going. What is cash flow statement? जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? अपने कैश का, कोई भी कंपनी कैश फ्लो जब बनाती है तो वो कैश फ्लो का इनफ्लो देखती है और आउटफ्लो देखती है कि हमारे पास में कितना कैश आ रहा है और किन किन सोर्सेस से आ रहा है और कितना कोर्स कैश जा रहा है और कौन कौन से एक्सपेंसेस या सोर्सेज में हमें वो कैश फ्लो लगाना पड़ रहा है. तो हमें कैश फ्लो कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा कि हमारी इनकम कितनी हो रही है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं. से इनकम जो होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एक्सपेंसेस बाय एक्सपेंसेस. तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें कितनी इनकम हो रही है वो पूरी इनकम हमारी आएगी. देन उससे हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसे हमें मार्केट में पहुंचाने में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या अगर हमारे डिलीवरी बॉयज हैं हमें उन्हें कितना सैलरी पे करना पड़ रहा है, कितना वेज पे करना पड़ रहा है. तो वो सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद में अगर हमारे पास में कोई एक्चुअल वैल्यू बचती है तो वो एक फेयर डिसीजन होगा उसको वो फेयर वैल्यू रखने का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या फिर हम उस प्रोडक्ट को बैकआउट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करना बंद कर सकते हैं, या फिर उसकी फेयर वैल्यू हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी कि अगर हमारा कैश इनफ्लो एक्सपेंसेस को मीट ही नहीं कर पा रहा है तो उस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू के साथ तो हमें फेयर वैल्यू में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे. So now the third method. Sorry, I'm taking the time by cleaning the board. This should be cut. But change assessment calculation. Last is change. Hope you guys can see it properly. Assessment calculation. What is change assessment calculation for fair value? So change assessment calculation, we need to consider the change. हमें change जो changes हुए हैं उनका assessment पहले करना है, उसके बाद में हम किसी particular product या service की fair value decide करेंगे. ये changes किस में हो सकते हैं? Demands में हो सकते हैं, raw material के prices में change हो सकते हैं, कंज्यूमर्स के माइंड सेटअप में हो सकते हैं. इट कैन बी
related with monetary changes, or it can be psychological change in the consumer mind also. So ये आपके दोनों ही चेंज हो सकते हैं, कंज्यूमर्स माइंड एंड प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस, हमारा रॉ मटेरियल. तो change assessment calculation is nothing but to consider the change which is happening in the market, and we need to consider that change while setting the fair value of our product or service. तो changes आपके raw material में अगर change हुआ, अगर प्राइस गिर गया तो हम फेयर वैल्यू कम कर सकते हैं, अगर प्राइस बढ़ गया तो हम फेयर वैल्यू बढ़ा सकते हैं. सेम अगर हमारे कंज्यूमर्स आर रेडी, साइकोलॉजिकल, दे आर परफेक्टली फिट एंड दे आर रेडी टू पे साइकोलॉजिकली द इंक्रीज्ड प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट, देन वी नीड टू कंसीडर दैट चेंज. और इसके अलावा अगर इकोनॉमी में कोई चेंज होता है या कोई कंपनी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर इकोनॉमी में कोई चेंज होता है, या फिर कंपनी कोई पॉलिसी चेंज होती है गवर्नमेंट की, अगर हम कोई बड़ा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ अगर उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हमें वो भी कंसीडर करने पड़ेंगे. तो चेंज असेसमेंट कैलकुलेशन, एज द नेम इज, वी नीड टू कंसीडर द all the changes which are relevant with our product and service, then we can set the fair value of our product. So guys, as decided in this session, we have discussed book value, market value and fair value of an asset, product and service. In our next video, we will discuss intrinsic value, what is intrinsic value, liquidation value, investment value, and I will also tell you how intrinsic value is related with the share market, share price. Intrinsic, I am just telling you that intrinsic value is nothing but the real value of share price of a company. So these terms are somewhere related with the share market. So कोई hodgepodge नहीं हो जाए and you people will get confused. So I will discuss these terms in our next video, and hope you guys understood these terms. And if you think that I did a mistake while explaining, and if you think that I need to add something, I need to improve myself, and then please do write in the comment section, and like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon, you will get the notifications of my new videos. And one more thing, we will soon going to discuss which ratios we can get from the balance sheet of a company while if we consider the share market. Like अगर हम share market के किसी भी कंपनी में कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, तो हम उसके बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिसे फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं. वो हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. वैसे तो आजकल बहुत सारे आपके पास में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और आप ग्राफ के थ्रू, कंपनी की परफॉर्मेंस के थ्रू, और आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी मिल जाएंगे जिन पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो उनकी रिसर्च करी हुई है. बट कंपनी के फाइनल अकाउंट से आप कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, वी विल सून डिस्कस दैट इन आवर कमिंग वीडियोज. सो do watch my videos and don't miss any video. And one more thing, मास्क एंड सैनिटाइजर के बिना घर के बाहर नहीं जाना है, और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर के बाहर जाना है. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.